A very good morning, 6th class. Today we will start our next chapter. This is the rise of new religions. This is the part of the history. And now here is given some learning objectives. Watch these attentively. And these are causes that led to the rise of new religions. Buddhism, teaching and spread. Then Jainism, teaching and spread. Art and architecture and Upanishads. Got it? Now let's start the chapter. We learned in the last chapter that towards the end of Vedic age, religion had become extremely complex for the common man. He was forced to perform expensive rituals and animal sacrifices on all the occasions. And thousands of animals were killed in the name of sacrifices. So, the condition of Vaishyas and Shudras was miserable. Only Brahmin could perform religious practices, and their power gradually increased. And these conditions created a feeling of unrest among people. And during this period, two great souls were born in India, and they were Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. They began to preach people by making them aware about the evil practices prevailing in the society. And they tried to spread the message. What message? Ahimsa. And ahimsa means non-violence and equality. All people are equal in the society. Clear? Equality among all humans. And their teaching gave rise to new religions. Which two new religions? That were two new religions. And these are Buddhism and the second one Jainism. Okay. Buddha is the founder of Buddhism and Mahavira is the founder of Jainism. Buddha and Jainism were simple religions which taught people. क्या सिखाया उन्होंने लोगों को? To follow the right path by leading a simple life. And these religions become very popular among people as they were simple to follow. Got it? Now, Buddhism. The founder of Buddhism was founder who's Gautam Buddha. Just remember Gautam Buddha. Okay, and he was Kshatriya prince. Who's a Kshatriya prince? क्षत्रिय मीन्स क्षत्रिय एक मिलिट्री कास्ट है जो कि प्रोटेक्ट करती है सोसाइटी को. ओके, एंड
real name, and Gautam Buddha's real name was Siddhartha. Okay, Siddhartha. And born when he was born 2500 year ago, okay, and was born on 567 BCE. Where? Lumbini. Okay, Lumbini near Kapilvastu. And Kapilvastu in where? Foothills on Nepal. Foothills on Nepal. As a prince, Gautam lived a comfortable life in his father's palace. And his father, named Shuddhodana, was the king of the Sakya clan. And Siddhartha was married to a princess named Yashodhara, and he had a son named Rahul. Okay, but जो लग्जरी लाइफ थी किसकी? सिद्धार्था, इट मीन्स गौतम बुद्धा की, did not satisfy his quest for truth. So he was not happy. His parents noticed this and married him to a princess named Yashodhara, and they had a son whom they named Rahul. But when he was a young man, he roamed outside his palace, and he sight of an old man, a sick man, and a dead person had a deep impact on him and completely changed his life. It made him very disturbed and sad. He thought, if only something could be done to stop people from growing old, falling sick and dying, everyone would be happy. He then saw a calm-looking hermit who was unaffected by the suffering and misery around him. After coming back to the palace, he thought deeply about it and decided to find the answer to the miseries of life. कि लाइफ के दुखों का मेन कारण क्या है, ये बात उनके दिमाग को हमेशा कचोटती थी, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी दो घटनाएं घटित हुई थी इनके साथ जिनके कारण ये पूरी तरीके से संन्यास की तरफ इनका ध्यान चला गया और जीवन के सच को जानने के लिए ये उत्सुक हो गए और इनको घर छोड़ना पड़ा, अपनी लग्जरी लाइफ इनको छोड़नी पड़ी। और वो कौन सी दो घटनाएं ऐसी थी? Once while roaming around his chariot, जब वो अपने रथ पर सवार थे, he came across 4 incidents that touched him deeply. 4 incident क्या थे वो? He first was the sight of an old man which made him sad. His charioteer, उनके जो सारथी थे, told him that everyone become old, हर एक को बूढ़ा होना है. And the other side was a sick man shivering with fever, जो बुखार से काँप रहा था. The third was the sight of a dead body being carried by the
क्राइंग एंड वेलिंग रिलेटिव्स, और एक डेड बॉडी की तरफ बैठे हुए सभी लोगों को देखा जो बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. एंड द फोर्थ वॉज एन ascetic. These incidents had a deep impact on his mind, and he began to think of a solution to overcome suffering of humans. और इसी बात ने उनके दिमाग पर इतना असर डाला और उन्होंने सोचा कि कुछ मैं ऐसा सॉल्यूशन निकालूं ताकि जो भी इंसानों के दुख, दर्द और तकलीफ है उनसे हमें छुटकारा मिल जाए. एंड तब क्या हुआ? आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट, दिमाग में बहुत सारे भावनाएं चलती रही, कन्फ्लिक्ट होते रहे. ही डिसाइडेड टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एंड लेफ्ट हिज पैलेस. वंस आउट ऑफ द सिटी लिमिट, ही टुक ऑफ हिज ज्वेलरी एंड वॉर ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. साधारण कपड़े वो पहन के वो घर से निकल गए. He roamed around for 6 long years. 6 साल तक वो लंबे घूमते रहे. And lived by begging and sometimes went without food for days. He came to Bodh Gaya in Bihar and sat under a huge peepal tree. तो क्या हुआ? वो बौद्ध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पर बैठे वो, और पीपल का पेड़ था जिसके नीचे वो मेडिटेशन करने लगे. टिल द मिजरी ऑफ लाइफ क्लियर्ड. ऑन द 49th डे ऑफ हिज मेडिटेशन ही डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रूथ एंड हैप्पीनेस. कैसे मिला उनको? जब वो तप कर रहे थे, और कौन सा दिन था वो? 49th डे मेडिटेशन का. उनको अचानक से क्या मिला? सीक्रेट ऑफ ट्रूथ एंड हैप्पीनेस. उनको इन चीज़ों का आभास हुआ एकदम से, अचानक से. फ्रॉम दैट डे ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, विच मीन्स द इनलाइटेंड वन. और क्या हुआ? तब से उनका नाम बुद्धा पड़ा. इट मीन्स इनलाइटेंड वन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइटेंड? The process of gaining knowledge and understanding something. Okay, this is the meaning of enlightened one. He delivered his first sermon at Sarnath near Banaras. So the students, Buddha meditated. Where meditated? Under the पीपल ट्री. और इन वेयर बोध गया. एंड वेयर द बोध गया सिचुएटेड? बिहार, इन बिहार. ओके, वेयर ही अटेन्ड इनलाइटमेंट. Enlightenment. And what enlightenment? At the age of 35. जब बुद्धा 35 एज के थे, 35 एज, then he got enlightenment. Okay, and he came to be known as Buddha. And Buddha meaning enlightened one. Enlightened one. Okay, what is the meaning of enlightened one or enlightenment? It means the process of gaining knowledge and understanding something. Okay, and he delivered. Buddha delivered. What delivered? First sermon.
message, okay, at Sarnath. Where सारनाथ में उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया. सारनाथ वेयर इन नियर बनारस. ओके. दिस sermon came to be known as धर्म चक्र प्रवर्तन. दिस फर्स्ट sermon is known as, किस नाम से इसको जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन. Okay, which means turning the wheel of law. He began to travel and preach. वो जगह जगह अब जाते रहे, घूमते रहे, मैसेज देते रहे. व्हाट मैसेज? क्या जाना उन्होंने? He realized the cause of the two human suffering. हमारी जिंदगी के दुखों के जो कारण है उनको पता चला. And the step necessary to eliminate it, और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं. These discovery became known as the four noble truth. और वो फोर नोबल ट्रुथ क्या थे? What? The teaching of Buddha are contained in four noble truths. और वो नोबल ट्रुथ्स थे. The world is full of misery and sorrow. ये पूरा संसार दुख और दर्द से भरा हुआ है. मेन कॉज, अब मेन कारण क्या है ऑफ मिजरी एंड सोरो के? इज कार्विंग ऑफ डिज़ायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड. कि जितनी भी हमारी डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति वो कभी नहीं हो सकती, वो कभी पूरी नहीं हो सकती. दीज कैन बी एंडेड इफ पीपल ओवरकम डिज़ायर. और ये कब दीज कैन बी एंडेड? क्या दीज कैन बी एंडेड? सोरो एंड मिजरी जब फिनिश हो सकती है जब इंसान की जो इच्छा है वो उनसे ऊपर सोचे, या पूरी तरीके से वो इच्छाएं ना जागे, अगर जागे भी वो पूरी हो पाए. एंड डिज़ायर कैन बी सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग. और डिज़ायर कब सप्रेस्ड हो सकती है? जब वो 8 फोल्ड पैथ रास्ते को अपनाएं. 8 फोल्ड पैथ. और ये 8 फोल्ड पैथ क्या है? क्या है ये 8 फोल्ड पैथ जो उन्होंने बताया? देर आर 8 बेसिक लॉ. ये क्या है? 8 बेसिक लॉ है, लॉज दैट ऑल पीपल मस्ट फॉलो. जिनको सभी क्या है, रहने वाली सोसाइटी में सभी इसको फॉलो करें. इफ़ दे विश टू एंड सफरिंग एंड अचीव निर्वाणा. अगर वो चाहते हैं रियल में जितनी भी सफरिंग है लाइफ की वो ख़त्म हो जाए. और वो ख़त्म होने के बाद एक स्टेज आती है. वो कौन सी स्टेज है? निर्वाणा. निर्वाणा मीन्स ये एक ऐसा लाइफ साइकिल है जो कि एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. जहाँ पर किसी बर्थ और डेथ का तकलीफ ही नहीं होगी. जन्म और मृत्यु का डर जिसको नहीं होता. ओके. एंड दीज आर द 8 फोल्ड पैथ. ओके, ये 8 फोल्ड पैथ है. 8 बेसिक लॉज. अगर हम इनको रियल में अपना लेंगे तो जितनी भी सोरो और मिजरी है वो हमारी लाइफ से चली जाएगी. और वो क्या क्या थे जो उन्होंने बताए? उन्होंने पहले तो हमें 4 सच बताए जीवन के. और वो सच क्या थे? कि ये जो सारा संसार है तकलीफ़ों से भरा हुआ है. और तकलीफ़ें कब आती हैं? जब हमारी इच्छाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं. और हमारी इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती तो हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाती है. और उस टेंशन से क्या होता है? हम दुख और तकलीफ़ में और बढ़ते चले जाते हैं. अगर हमें रियल में इस दुख और तकलीफ़ से बाहर निकलना है तो हमें ज़िंदगी के 8 ऐसे कानून को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम दुख और तकलीफ़ से निकल पाएँ. और निर्वाण एक ऐसी एज हम हासिल करें जहाँ पर जन्म और मृत्यु का कोई डर नहीं होता. ओके. सो वो को क्या क्या थे? 8 फोल्ड पैथ. राइट स्पीच, राइट मेडिटेशन, राइट लिविंग,
right action, right recollection, right effort, right thought, and right belief. So these are the eightfold path. Okay, and the main teaching also of Buddha. So the students, these are the main teaching of Buddha. और ये क्या थे? Middle path. Middle path means Buddha realized that people could not follow rules if the rules were too strict. जितने rules strict होंगे उतने लोग उसको follow नहीं करते. He taught, क्या सिखाया उन्होंने? That peace and happiness can be achieved by following the middle path or the life of moderation in everything. One should neither lead a life of extreme luxury or nor extreme ascetic. Okay, and the second one, non-violence. Non-violence means, or ahimsa means, इक्वालिटी, ऑल ह्यूमंस, सभी लोग बराबर हैं. ओके, और इसमें क्या चीज़ें बोली गई? उन्होंने क्या सिखाया? ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट करे वो किसकी? लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो. ओके, एंड द थर्ड वन इज nirvana. Nirvana means the main aim of life should be to achieve nirvana or freedom from the cycle of life and death by following a life of virtue. It means जो उन्होंने 8 बेसिक लॉज बताए थे उनको अपनाएं, उन रूल्स को अपनाएं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं? निर्वाण. Okay, and against caste system, और he believed that all people are equal, सभी equal हैं. Okay, and he was against the caste system. जो हमारी सोसाइटी में आज भी कास्ट सिस्टम है, अपर क्लास लोअर क्लास, वो इनके बिल्कुल खिलाफ थे. और थ्योरी ऑफ कर्मा उन्होंने बताया. It means he believed that the results of our actions of karma, जो हम काम करेंगे उसी से हमारी सारी चीज़ें जो चाहे वो गुड है या बैड है वो हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं. इसलिए अपना काम करते चलो, रिजल्ट पर ये मत देखो कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. ओके, और उस कर्मा का फ़र्क हमारी आने वाली ज़िंदगी पर भी पड़ता है और हमारी जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी इसके अलावा उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा. एंड अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ही डिड नॉट बिलीव द कॉस्टली रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. ओके, वो इनके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस के लिए. सो ये उन्होंने मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा. ओके, इन्होंने इन चीज़ों का संदेश हमारे सोसाइटी में दिया. और एक मेन बात बुद्धा ने और क्या दी स्टूडेंट्स? ही टॉट प्राकृत लैंग्वेज. उन्होंने जो प्राकृत लैंग्वेज है वो इसका माध्यम बनाया, मीडियम बनाया, क्योंकि हर एक इंसान के पास वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे अपने रिलीजन का. ओके, और उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की यहाँ पर? प्राकृत लैंग्वेज, द लैंग्वेज द ऑर्डिनरी पीपल. ये एक ऑर्डिनरी पीपल मतलब सभी लोगों के लिए, जिसमें एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, जिसमें कि सभी लोग अच्छे से आसानी से सब चीज़ें समझ पाएँ. ओके, अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म मीन्स Buddha's simple teaching attracted a large number of people to Buddhism. It spread over many countries. Where? Many countries besides India, and Buddhist monks spread the teaching. Here is a one word given, monks. अब monks किसको बोला गया है? Listen students carefully. क्योंकि जो
बुद्धिज्म था, उसको दूर दूर तक फैलाने में मॉन्क्स का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। मॉन्क्स उसको बोलते हैं अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप ऑफ मैन who live in a special building and do not get married, have possessions, जो अपनी शादी नहीं कराते और वो एक बिल्डिंग में रहते हैं, लोगों का कुछ ग्रुप्स और एक स्पेशल ग्रुप को, रिलीजियस को, जो मानता है। ओके, सो और इन मॉन्क्स ने ये कहाँ कहाँ स्प्रेड किया द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म? इन तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडो चाइना and Indonesia. Okay, it is still a popular religion of these countries. Is that clear? And one more thing, causes for the spread of Buddhism के क्या है? एक तो it was a simple religion, ये बहुत ही simple religion है, एक तो ये बहुत simple religion है, and it was preached in a simple language of common people, and everybody was considered equal, and scholars from all over India and abroad came to Malinda and Vikramshila. ये क्या थी? मलिंदा और विक्रमशिला द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज थी, और जहाँ पर विच वर द सीट्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, जहाँ पर ये चीज़ें सीखी जाती थी। और किंग्स जो स्पेशल हमारे इंडिया में भी थे, वो लाइक अशोका, Kanishka and Harsha took upon themselves to spread the message of Buddhism to other places. Got it? Now here we are talking about sectors of Buddhism. Okay, so here is a one word given, sectors. What is the meaning of sects? A group of people who have a particular set of religious or political belief. It means ये बहुत बड़े लेवल पर एक कुछ लोगों का समूह होता है, and a sectors has often breaken away from a larger group, और वहाँ से वो कुछ भागों में बट जाता है। और ये कब हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा की डेथ हो गई थी, जो बुद्धिज्म उन्होंने बनाया था वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ओके, और वो मेजर पार्ट्स क्या थे? फर्स्ट वन जो स्टेज बनी वो हीनयाना, ओके, और सेकंड वन थी महायाना। इसमें ये बट गया। ओके, और हीनयान में क्या था? मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म थी। द फॉलोवर ऑफ दिस सेक्ट बिलीव्ड इन 4 नोबल ट्रुथ। ये सिर्फ क्या करते थे हीनयान? जो बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे जिंदगी के, और जो मिडल पैथ बताया था किसके लिए? टू अचीव निर्वाण स्टेज को अपनाने के लिए, ये सिर्फ उन चीज़ों को मानते थे और उनको ही फॉलो करते थे। बट महायान में क्या हुआ? जो फॉलोवर्स थे वो वर्शिप्ड बुद्धा एज अ गॉड, उसको भगवान के रूप में मानते थे, और दे वर्शिप्ड, वो उनकी पूजा करते थे। कैसे? दे वर्शिप्ड द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बिल्ट द इज स्टैचूज, उनके स्टैचूज बना के वो उनकी पूजा करने लगे। एंड दे ऑल्सो परफॉर्म्ड सम रिचुअल्स, और जो रिचुअल्स थे वो उन्होंने वो भी बनाए। ओके, सो बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर sects, and this was Hinayan and Mahayana. Got it?
और बाद में संघ भी बनाए गए। संघ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जहाँ पर बहुत एसोसिएशंस ऑफ मॉन्क्स की होती है, जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स साथ मिलकर रहते हैं। एक एसोसिएशन होती है, फॉलोअर्स हु लेफ्ट देयर होम्स, जो अपना घर छोड़ के आ जाते हैं और यहाँ पर संघ में रहते हैं, संघा। एंड संघा कुड बी ज्वाइंड बाय एनी पर्सन, इनको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबरर्स हो, बार्बर हो, कोर्टसिन्स और स्लेव्स हो, कोई भी यहाँ पे आके रह सकता है। ओके, और द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक, ये एक बुक में लिखा गया है, इसके बारे में, संघ के बारे में बुक में लिखा गया है, और उस बुक का नाम क्या है? विनय पीटका। ओके, ये इस बुक का नाम है। और यहाँ पे बौद्ध, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स एंड नन्स लिविंग इन संघा वर सपोज टू लीड अ सिंपल लाइफ, जहाँ पे रहते हैं और ये भिक्षुक की तरह अपना जीवन गुजारते हैं। भिक्षुक, और भिक्षुक किसको बोला गया है? जो कि लोकल पीपल जो होते हैं, वहाँ के आसपास रहने वाले, उनके पास जाते हैं और अपने वहाँ से ही खाना मांगते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं? वह उनके गुड मैसेज उनको देते हैं और अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाते हैं, और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग उन्हें गिफ्ट के तौर पर फूड देते हैं, क्लॉथ्स देते हैं और मेडिसिन भी उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये मॉन्क्स और नन क्या करते हैं? ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन। इज इट क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आर्ट और आर्किटेक्चर कैसी थी वहाँ पर? बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी स्तूपा। अब देखो, आर्ट और आर्किटेक्चर्स को यहाँ पे बताया गया है, जो बुद्धिस्ट वहाँ पे ये उन्होंने चीज़ें बनाई। फर्स्ट वन इज मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर। ओके, स्तूपा, स्तूपा क्या है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वेयर द relics or the sacred remain of Buddha such as a hair, a nail or tooth are preserved are known as stupa. Okay, और फिर है चैत्या। ये क्या है? एक बुद्धिस्ट श्राइन और अ लार्ज हॉल है, होता है जहाँ पर मेडिटेशन की जाती है। ओके, लार्ज हॉल। दिस इज द पिक्चर ऑफ बुद्धा मोनेस्ट्री, जो कि एलोरा में है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा। ओके, एंड चैत्यास, ये एक हॉल है जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है। नाउ हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर होता क्या है स्टूडेंट्स? ये एक प्रिंटेड मटेरियल होता है, प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल्स में क्या होता है? कुछ चीज़ें छपी हुई होती हैं जो हमें जानकारी देती हैं किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पर बात की गई है बुद्धिस्ट लिटरेचर की। बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा कंपाइल्ड इन 3 बुक्स। 3 बुक्स है यहाँ पर जो इनकी लिटरेचर है, और वो कौन कौन सी है? विनय पीटका, और है सुत्त पीटका, और एक है अभिधम्मा। ये नाम है इन बुक्स के। ओके, सो दीज बुक्स आर टुगेदर कॉल्ड, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड त्रिपीटका। त्रिपीटकाज के नाम से इनको जाना गया है। और दीज बुक्स वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, और इनकी लैंग्वेज क्या है? पाली लैंग्वेज में इनको लिखा गया है। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ अब हमने बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में आज पढ़ा, उनके बारे में हमने बहुत सी बातें जानी। एंड आप क्या करेंगे?
इस वीडियो को बहुत अटेंटिवली देखेंगे और चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे। इन नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो जो हमारा सेकंड रिलीजन है वो कौन सा, जैनिज्म, हम उसके बारे में रीड करेंगे। इज दैट क्लियर? और कुछ हम एनालाइजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो आई थिंक you got it.